Good morning, everyone. Today I'm here with a new video on dissolution of partnership firm. In today's video, we are going to do a practical problem on dissolution of partnership firm, which usually comes in CBSE exams for 6 to 8 marks. So the practical problem is related to preparation of realization account, partners loan account, partners capital account, and bank account. So here is the question. The question is, following is the balance sheet of Karan and Sandeep, who share profits and losses equally as on 31st March 2020. On liability side, we are given capitals Karan 1 lakh, Sandeep 50,000, creditors 30,000, workmen compensation fund 15,000, and Karan's loan account 5,000. So the total is 2 lakh. On asset side, we have bank 40,000, debtors 25,000, stock 35,000, machinery 60,000, furniture 40,000, and total is 2 lakh. Regarding the additional information, the firm was dissolved on the above date. Karan agreed to take over 50% of stock at 10% less than its book value. The remaining stock was sold at a gain of 15%. Furniture and machinery realized rupees 30,000 and rupees 50,000 respectively. Second one, there was unrecorded investment which was sold for rupees 25,000. Then third one, debtors realized rupees 31,500 with interest and rupees 1,200 was recovered for bad debts written off last year. Fourth one, there was an outstanding bill for repairs which had to be paid rupees 2,000. Prepare realization account, partners loan account, partners capital account, and bank account. The first thing which we have to do is we have to prepare realization account and we have to transfer all the assets and outside liabilities to realization account. So if we see in this question, on asset side except bank balance, all other 4 assets will be transferred to debit side of realization account. And from liability side, we have only one outside liability, that is creditors. So it will also be transferred to realization account. So here we are going to transfer assets and liabilities to realization account. For assets, we are going to transfer them on debit side of realization account. And the entry will be realization account debit to sundry assets, debtors 25,000, stock 35,000, furniture 40,000, and machinery 60,000. And outside column will write the total, which is 1,60,000. On credit side of realization account, we are going to transfer the outside liabilities, which is creditors. Here it is 30,000. Apart from that, there is no outside liability in the balance sheet of partnership firm. So after transfer of assets and liabilities, then we are going to take up adjustments one by one. First one is Karan agreed to take over 50% of stock at 10% less than its book value. What does it mean? कि जितना भी हमारा स्टॉक है इट इज़ 35,000. करण इसमें से 50% टेक ओवर करना चाहता है. 35,000 का आप 50% कर दीजिए, इट विल बी 17,500. और वो भी वो कैसे लेना चाहता है? एट 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू. 17,500 का 10% कर दीजिए, विच विल बी 1750. इसी को आप 17,500 में से माइनस कर दीजिए एंड इट विल बी इक्वल टू 15,750, विच मीन्स कि करण 50% ऑफ स्टॉक को 15,750 पर टेक ओवर करना चाहता है और उसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट की
क्रेडिट में आ जाएगी बाय करंस कैपिटल अकाउंट 15,750। ये करने के बाद द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 15%। रिमेनिंग भी हमारे पास 17,500 ही स्टॉक बचता है, उसको सेल कर दिया एट अ गेन ऑफ 15%। तो 17,500 में आप 15% प्लस कर लीजिए, इट इज़ 2625 और ऐड ऑन करने के बाद द वैल्यू विल बी 20,125। इतनी वैल्यू के लिए हमने स्टॉक को सेल कर दिया। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाय बैंक स्टॉक सोल्ड इज 20,125। देन नेक्स्ट हमारे पास एडजस्टमेंट, इसी फर्स्ट एडजस्टमेंट के अंदर ही पॉइंट है, फर्नीचर एंड मशीनरी रियलाइज ₹30,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। हेयर ऑल्सो वी रिसीव द कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये भी हमारा आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। बाय बैंक फर्नीचर 30,000, मशीनरी 50,000 एंड टोटल विल बी 80,000. So first point's work is done. Then we have the second point. There was unrecorded investment which was sold for ₹25,000. अब unrecorded asset है, but we received the cash and whatever the money we are receiving at time of dissolution, ये हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। तो इट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ही बाय बैंक 25,000 unrecorded investment. You can see here in the last point, buy bank investments 25,000. So these were the unrecorded investments. Third point is debtors realized ₹31,500 with interest and ₹1,200 were received for bad debts written off last year. तो डेटर से हमें कितना पैसा मिला है? 31,500 प्लस 1,200 32,700। यहाँ भी हमें पैसा रिसीव हुआ, तो ये भी रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाय बैंक डेटर्स इट इज़ 31,500 प्लस 1,200 करके ये 32,700 हमारा यहाँ भी आ गया। सो हेयर वी हैव रियलाइज्ड एवरीथिंग फ्रॉम द एसेट्स। नेक्स्ट हमारे पास है कि वी हैव टू पे ऑफ आवर ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज वेदर रिटन इन द क्वेश्चन और नॉट। अब यहाँ क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं कहा, बट स्टिल इट इज़ एन आउटसाइड लाइबिलिटी, इट विल हैव टू बी पेड। तो ये हमारी रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक क्रेडिटर्स 30,000. Then we have the fourth point. There was an outstanding bill for repairs which had to be paid ₹2,000. So it is also unrecorded liability, but as it is a liability, so it has to be paid at time of dissolution. तो ये भी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही पे होगी और एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये भी हमने डेबिट साइड में कर दिया, टू बैंक 2,000। अब यहाँ हमने सारी एडजस्टमेंट्स भी रियलाइजेशन अकाउंट की कर ली हैं। व्हाट वी डिड फ्रॉम स्टार्टिंग, सारी एसेट्स ट्रांसफ़र की, लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र की, देन जो एसेट्स रियलाइज़ करनी थी, सेल ऑफ करनी थी, सेल ओवर कर दी, जिसको किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर दिया उसकी भी एंट्री कर दी, अनरिकॉर्डेड एसेट की भी एंट्री कर दी, देन आउटसाइड लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी डेबिट साइड में और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी पे कर दी। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है इट इज़ कि आप क्रेडिट साइड को टोटल करके डेबिट में से माइनस कर दीजिए। यू विल फाइंड द रिजल्ट प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो हमने यहाँ ऐसा ही किया है। क्रेडिट साइड टोटल अप करके हमारा टोटल आ रहा है 2,03,575 और डेबिट में से माइनस करने के बाद हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 11,575 which is profit on realization, and this profit on realization will be transferred to partners capital account in the profit sharing ratio. Here in the question profit sharing ratio was 1:1, so profit on realization transferred to partners capital account. करण और संदीप दोनों को हम 11,575 के प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो अकॉर्डिंगली करण का शेयर आ गया 5
5787.5 और संदीप का शेयर आ गया 5787.5. So this is how we are going to complete our realization account. This is the first step while doing the practical questions. Then we are going to prepare partners loan account. आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर देखिए, we are given here a partner's loan, Karan's loan for rupees 5,000. So now we are going to pay it off. For this we are going to prepare a Karan's loan account. So here it is, Karan's loan account. First of all, what we are going to do, we will brought down the balance. By balance brought down 5,000. Then we have to pay it off. The entry is Karan's loan account debit to bank. तो loan account में ये debit में आ जाएगी to bank 5,000. So this way we have closed Karan's loan account. Then after preparing the loan account, then we have to prepare partners capital account. So here it is, partners capital account. Partners capital account में first of all we will take the opening balances from the balance sheet, which we will brought down on the credit side as by balance brought down. Karan का balance 1 lakh, संदीप का 50,000. After that we will see any accumulated profits or reserves in the balance sheet. हम चेक करेंगे कि बैलेंस शीट में कोई accumulated profits या reserves हैं तो उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे amongst the partners in their profit sharing ratio. If we see it carefully, हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड था 15,000 का. So it is workman compensation fund. So what to do for this workman compensation fund? It will be distributed amongst the partners in equal ratio. That is 1:1. So we have to give 7,500 to Karan and 7,500 to Sandeep. So it will also appear in partners capital account on credit side as by workman compensation fund. Then if there is any profit on realization, so it will also be taken to credit side of partners capital account. Here we calculated in the last step. The profit is 11,575. It will be taken to partners capital account credit side. तो ये भी हम डाल देंगे by profit on realization. Then if any asset is taken over by partner, अब ध्यान से देखिए realization account के अंदर हमने एक जगह डाला था by Karan's capital. करण ने स्टॉक टेक ओवर किया था तो ये एंट्री हमारी कैपिटल अकाउंट के अंदर भी आएगी. करंस कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आएगी. द एंट्री इज करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो ये भी हमने दिखा दी. करण की कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने डेबिट साइड में दिखा दिया. टू रियलाइजेशन स्टॉक टेकन ओवर बाय पार्टनर 15,750. तो हमने कहाँ से शुरू किया? हमने पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, फिर अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग्स द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देन प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन, इन दिस क्वेश्चन इट वाज द प्रॉफिट, तो ये भी क्रेडिट साइड में आ गया. उसके बाद अगर कोई एसेट टेक ओवर की है तो वो भी डेबिट साइड में आएगी. इतना करने के बाद यू विल चेक प्रॉपरली कि रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर पार्टनर्स कैपिटल की कोई और एंट्री तो नहीं बची है. अगर नहीं बची है देन फाइनली वी आर गोइंग टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो. क्रेडिट साइड ऐड करके डेबिट में से माइनस कर देंगे. अगर डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो इट इज़ एक्सेस कैश और बैंक विच विल बी पेड ऑफ टू पार्टनर्स. और अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है इट विल बी बाय कैश, डेफिसिट कैश टू बी ब्रॉट इन बाय पार्टनर्स. तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है. हमने क्रेडिट साइड एडअप की, टोटल इज 1,13,287.5 और डेबिट में एक ही आइटम है 15,750. ये माइनस कर दिया तो हमारे पास एक्सेस कैश है विच विल बी पेड ऑफ टू पार्टनर्स. हम डेबिट में लिख देंगे टू बैंक. इट इज़ 97,537.5. सेम ऐसे ही हम संदीप के कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस कर लेंगे.
क्रेडिट साइड ऐड ऑन करेंगे, द टोटल इज 63,287.5। डेबिट में से माइनस किया, देयर इज़ नो आइटम, तो सारे का सारा जो भी है वो हम टू बैंक कर देंगे 63,287.5। इट मीन्स करण को हमने 97,537.5 और संदीप को हमने 63,287.5 देने हैं। सो लास्ट in this series is preparation of cash account. So let's see with cash or bank account. इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपने बैलेंस शीट से ही इसका बैलेंस लेना है। अगर डेबिट बैलेंस है तो वहाँ से ले लेंगे, और अगर हमारे पास ओवरड्राफ्ट है तो हम क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन कर देंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमारा डेबिट बैलेंस था तो हमने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन रियलाइजेशन अकाउंट में इससे रिलेटेड जो भी एंट्रीज हैं, मीन्स जहाँ से पैसा आया या जहाँ पर गया, वो सारी रिलेवेंट एंट्रीज हम बैंक अकाउंट के अंदर पोस्ट कर देंगे। यहाँ हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट है, आप एक एक करके चेक कीजिए। डेबिट साइड में देखते हैं, इट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक 2000 की एंट्री है, फिर रियलाइजेशन टू बैंक, फिर 30,000 की एंट्री। तो पहले हम उन्हीं को ले लेते हैं बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में। ओके, द एंट्री वाज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक मीन्स कि बैंक अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है, हम पेमेंट करेंगे, ये हमारे बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगी बाय रियलाइजेशन। ये आ गई हमारे पास बाय रियलाइजेशन अकाउंट। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों की हमने एक साथ एंट्री कर दी 32,000। फिर हम देखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर कहाँ से हमें पैसा रिसीव हुआ। सो हियर इट इज़, क्रेडिट साइड में देखिए, बाय बैंक स्टॉक, बाय बैंक एसेट्स रियलाइज्ड 80,000, बाय बैंक डेटर्स 32,700, बाय बैंक इन्वेस्टमेंट्स 25,000। तो ये सारी एसेट्स हमने सेल की हैं जिससे हमें पैसा रिसीव हुआ, एंड एंट्री वाज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब बैंक अकाउंट को डेबिट किया है तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन 20,125, एंड टू रियलाइजेशन 80,000, टू रियलाइजेशन 32,700 एंड टू रियलाइजेशन 25,000। तो ये भी हमने यहाँ पर डेबिट साइड वाली सारी एंट्रीज डाल दी। उसके बाद हम देखेंगे कि बैंक अकाउंट में और क्या आना है। एक हमारे पास करण का लोन अकाउंट था जिसके अंदर हमने पेमेंट करी थी करण's लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब टू बैंक है, इसका मतलब यहाँ भी हमने उसको पेमेंट की है, ये भी हमारी बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय करण's लोन अकाउंट। इसके अलावा और हमारे बैंक से रिलेटेड क्या एंट्री है, जो भी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर्स को पैसा पे ऑफ किया था वो भी हमारी बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। द एंट्री वाज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। लास्ट ट्रांजैक्शन जहां हम फाइनल सेटलमेंट करते हैं, इट इज़ 97,537.5 एंड 63,287.5। तो एंट्री यहाँ पर है करण's कैपिटल अकाउंट डेबिट, संदीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट की तो ये भी बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय करण's कैपिटल 97,537.5, बाय संदीप्स कैपिटल 63,287.5. Now we have done everything, every transaction which is associated with bank account as well. अब lastly what we are going to do, we will total up the debit side of bank account and credit side of bank account, and you have to see that the total should be equal. So here in this question the total is 1,97,825 on debit side, and the same is on credit side, that is 1,97,825. So if your bank account tallies the total of bank account and debit and credit side both is equal, you will come to know that your accounts have been prepared in arithmetical accuracy. So this is the final check. So these are the 4 type of accounts which we have to prepare in dissolution of partnership firm.
which we did in this question, that is realization account, partners capital account, partners loan account, and the final is bank account. I hope all of you might have understood the topic. Thank you and have a nice day.